Hello students, this is Bhashwati teacher. Welcome to my channel Learning English with Bhashwati teacher. Today we are going to start lesson number 2.5. Let's march. It is written by Kailash Satyarthi, who got the Nobel Peace Prize along with Malala. So this is Mr. Kailash Satyarthi. Come, let's get started. And let's march का मतलब है चलो आगे बढ़ते हैं. Kailash Satyarthi, he was born in 1954 and he is of course alive. And if you watched that one of the episodes of KBC, Kaun Banega Karodpati, so he was there. So he is an Indian children's rights and education advocate and an activist against child labor. He founded the Bachpan Bachao Andolan in 1980 and has acted to protect the rights of more than 83,000 children across 144 countries. He is honored with many awards, including Nobel Peace Prize for 2014. He had addressed this speech on the eve of Nobel Prize distribution ceremony. तो कैलाश सत्यार्थी जी कौन है? इंडिया में बच्चों के हक के लिए लड़ने वाले और उनकी पढ़ाई के लिए लड़ने वाले वो एक एडवोकेट हैं और वो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में वो एक्टिविस्ट हैं. वो बचपन बचाओ आंदोलन नाम का उन्होंने एक ये संस्था फॉर्म किया था 1980 में और 83,000 बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब 144 कंट्रीज़ में इतने सारे बच्चों को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है. उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है 2014 में. एंड ये जो स्पीच है ये उन्होंने नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में बोला था. Part 1. My dear children of the world, Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. From the podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient texts of wisdom, Vedas. This mantra carries a prayer, an aspiration, and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. Let's walk together. In the pursuit of global progress, not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. Let's speak together. Let our minds come together, learning from the experiences of our ancestors. Let us together create knowledge for all that benefits all. I bow to my late parents, to my motherland India, and to the Mother Earth. With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated. Each time I have freed a child from slavery. In the first smile of freedom on their beautiful faces, I see the gods smiling. I give the biggest credit of this honor to my movements, Kalu Kumar, Dhoom Das, and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masih from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting. ठीक है. नाउ द स्पीच बिगिंस विद कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं कि माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड. योर मैजेस्टीज़ मतलब राजा महाराजा को बोला जाता है योर मैजेस्टीज़. योर रॉयल हाइगनेसेस ऑल्सो, जो लोग रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं उनको. अगेन एक्सीलेंसीज, और जितने भी नॉर्वेजियन यू सी जो सर अल्फ्रेड नोबेल हैं जिनके नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो नॉर्वे का है. दैट्स वाई द नॉर्वेजियन. सो जितने भी डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स हैं नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के. और मेरा माय डियर ब्रदर मिस्टर टॉम हार्किन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जितने भी बैठे हैं, एंड माय डियर डॉटर मलाला. नाउ सी, मलाला ऑल्सो रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन द सेम ईयर along with Kailash Satyarthi. Malala was the girl who was shot at by the Taliban. Why? Because she was protecting the girls' rights of education in Pakistan. Okay. अब स्पीच में ऐसा लिखते हैं, फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी. पोडियम मतलब स्टेज. ये जो नोबेल पीस प्राइज का जो स्टेज है वहाँ पे पीस और ह्यूमैनिटी हम लोग प्रीच कर रहे हैं. तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि मैं हमारे वेदास में से एक मंत्र बता रहा हूँ. इस मंत्र के अंदर एक प्रेयर है, एक एस्पिरेशन है, कुछ करने की इच्छा है, और एक रिजॉल्व है. रिजॉल्व मतलब अगेन कुछ मन में ठान लेना, वो जिसमें एक पोटेंशियल है कि ह्यूमैनिटी को जितने भी मैन मेड तकलीफ़ें हैं उसमें से लिबरेट करना, इंसानियत को लिबरेट करना. लेट्स वॉक टुगेदर, चलो हम लोग एक साथ चलें. इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस मतलब पूरे वर्ल्ड की तरक्की के लिए.
सिर्फ एक सिंगल इंसान हम लोगों से पीछे नहीं छूटना चाहिए इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ईस्ट हो या वेस्ट हो या साउथ हो या नॉर्थ हो। लेट्स स्पीक टुगेदर, सेकेंड वाला वर्ड है। चलो हम लोग सब मिलकर बात करें, चलो हमारे माइंड जो है वो एक साथ आए। फिर ये जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस में से हम लोगों को सीखना पड़ेगा, और उसके बाद चलो हम सब लोग मिलकर नॉलेज क्रिएट करें जो कि बेनिफिट करता है सबको। उसके बाद मैं मेरे लेट पेरेंट्स, जो मेरे स्वर्गवासी पेरेंट्स हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। माय मदरलैंड इंडिया, मेरे देश इंडिया को मैं प्रणाम करता हूँ, और मदर अर्थ, पूरे अर्थ को, पृथ्वी को मैं प्रणाम करता हूँ विथ अ वार्म हार्ट। मुझे अब याद आ रहा है कि हज़ारों बार, कितने बार मैं खुद लिबरेट हुआ हूँ, जितने बार मैंने किसी बच्चे को स्लेवरी में से लिबरेट किया है। एंड सबसे पहला जो स्माइल है फ्रीडम का उनके चेहरे के ऊपर, जो मैंने ब्यूटीफुल चेहरे के ऊपर जो देखे, मुझे ऐसा लगा कि भगवान स्वयं मेरे ऊपर मुस्कुरा रहे हैं। और ये इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं ये इस ऑनर का मैं देता हूँ मेरे मूवमेंट में जो मेरे साथीदार थे, कालू कुमार, जिन धूमदास और आदर किशोर, ये इंडिया के थे, और इकबाल मसीह जो पाकिस्तान के थे, जिन लोगों ने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया था ये इन बच्चों को टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द चिल्ड्रन। इन बच्चों के फ्रीडम को और इन लोगों की इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इन्होंने कोशिश की थी। I humbly accept this award on behalf of all such martyrs who my fellow activists across the world and my countrymen. My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. Friends, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. Respectfully, I am unable to do that because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence and the face of invisibility. I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. I have come here only to share the voices and dreams of our children because they all are our children. Gesture to everyone in the audience. I have looked into their frightened and exhausted eyes. I have held their injured bodies and felt their broken spirits. मैं ये अवार्ड उन सारे सैनिकों के बिहाफ में एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे साथ जो फेलो एक्टिविस्ट थे दुनिया भर में, और मेरे सारे देशवासियों के बिहाफ पे मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। मैं किस देश से आया हूँ, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जन्मे, जहाँ पे गुरु नानक थे, जहाँ पे महात्मा गांधी थे। इंडिया से लेकर आज मैं नॉर्वे तक आया हूँ, और ये जो है ये कनेक्ट है बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस। इंडिया भी एक सेंटर है ग्लोबल पीस का, और नॉर्वे भी है, और ब्रदरहुड भी, एंशिएंट एंड मॉडर्न। फिर फ्रेंड्स, ये जो नोबेल कमेटी है इन्होंने जनरसली मुझे इनवाइट किया है ताकि मैं एक लेक्चर दे सकूँ यहाँ पे। रिस्पेक्टफुली मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं दे सकता, मैं सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ द साउंड ऑफ साइलेंस। जो लोग खुद अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, मैं उनकी आवाज़ बन के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। द क्राई ऑफ इनोसेंस, जो इनोसेंट लोग, जो लोग रोते रहते हैं वो। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, जो लोग कीड़े मकोड़े की तरह जीते हैं, जिन लोगों को कभी कोई पहचानता नहीं, लेकिन सारी ज़िंदगी वो लोग मेहनत करते रहते हैं, ऐसे लोग, फेस ऑफ इनविजिबिलिटी। मैं ऐसे मिलियंस ऑफ बच्चों को रिप्रेजेंट करता हूँ जो पीछे रह गए हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी खाली चेयर रखा है उनकी याद में। मैं सिर्फ यहाँ पर आया हूँ उन लोगों की आवाज़, उन लोगों के ड्रीम्स, बच्चों के ड्रीम्स जो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि वो सारे जो हैं वो हमारे बच्चे हैं। मैंने उन लोगों की आंखों में देखा है कितना डर है, कितने थके हुए हैं, फिर भी चाइल्ड लेबर की तरह वो काम किए ही जा रहे हैं। मैंने उन लोगों के इंजर्ड बॉडीज़ को देखा है, मैंने उनके ब्रोकन स्पिरिट्स को फील किया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू टुमारो।